This is your host Salim bin Muhammad Rafi, and here is my YouTube channel Zamir Universal. Today I am going to really answer all this media of India, our neighbor. Unfortunately, in the last 8 years, when we had a dictator and one of the dirtiest, one of the filthiest, one of the cruelest, one of the raciest anti-minorities, anti-Muslims, anti-Dalits, anti-Sikhs, anti-poverty, anti-poor Narendra Modi, the scum of the society where the visa was denied to the butcher of Gujarat by all the civilized world. But since the largest population, which just like Laos is the second largest, most populous country in the world after China. They had one baby policy for many, many years, and now they are suffering. But India, especially in the poor, people have 7, 8, 9, 10 or even 12 children. We had this man spread lies and target Muslims, and on that he thrived. That was his breakfast, lunch and dinner. Having this dirtiest, filthiest, hypocrite, liar, pretending that he is a poor, but he has the second, third most corrupt man in the world. And you look at the shirts, look at the dresses, look at what he has with him as his possessions and thrown away in the banks, and his friends Adani and Advani. Nobody you will find a poor will be his friend. And the way he had been vindictive to the opposition leaders and put them in jail, controlled the judiciary, controlled the army, controlled election commission, controlled the EMV. He controlled even this through security, the most notorious murderers, and some of his supporters said that why can't we follow the policy of Israel of ethnic cleansing and get rid of the minorities and have just his type of Hindu religion, RSS, that's been their narrative, and that goes way back to almost 100 years. So you can imagine that the racist man, he has received a big slap on his face and been boasting about 400 seats to have 2/3 majority so that he can change the constitution and convert the India into and take it to 1,000 years back to that special kind of a Hindu religion which he believes in, but not the present Hindus, which you never fight, and they just say Ram Ram, and they are never ever fought with anybody. This has been known to the British, this has been known to all the armies of the world, that the Indians, present Indians, and they have never fought. And this is how you see is cowed down to Chinese, and they kept lying that there was not a single inch the Chinese have taken from India. And the poor Kashmiris, and not only Kashmir, Hyderabad, Junagadh, you see the Muslim dominant states which he, because they were inside India, he forced and occupied them. And this time has come after the destruction and complete elimination of now Netanyahu and Israel getting completely wiped off from the map of the earth, then to wipe off this particular man's type of Hindu religion. Not the other Hindus which are peace loving, who believe in secular and who can tolerate diversity, who can tolerate other religions, and who have lived with all the other peoples with all complete freedom in their dress, in their religion, in their culture. And I think typical example is that of Kashmir, and you can see that the national and international award winner
journalist. She is so well known in the world, outspoken, speaks the truth, not his follower, and he is digging up the grave and 10 years old case. He wants to some way, with vindictiveness, to arrest her for the statement she made about that Kashmir has never been a part of India, which is so true. And it's up to the Abdullah family, who supported this and was betrayed by this beast, this butcher, now to rise up again and start making their point and have the help of Chinese, who are now embracing all the Middle Eastern countries, the Afghans, Taliban, and then get rid of this man. Not only you will get your independence, you will also help those 7 countries, the Nagaland, all those, the chicken neck 7 states, which will spit on his face and they leave. And then Mamta, the Bengal, will spit on his face and leave. Then Uttar Pradesh now, where he destroyed the Babri Mosque, he will throw him out, and they will say. Then the Sikhs will spit on his face and they won't like to have him. You can see that the Hyderabad, you can see the Owaisi, he is spitting on his face and saying that hatred, he said that the people have answered him back, that they don't want that kind of a hatred he's been spreading, that your Mangal Sutra will be melted and they will be taken away from all Hindu women. Imagine at the lies of this gentleman and the hatred he, not only he preached, he practiced. So God forbid him and burn him in the deepest pits of hell. And people should now get rid of him. Now is the time to get rid of him as Amit Shah and the whole group who've been putting the others, the innocent people, in jail, and through the Chief Justice of India and some of the judges, he's bribed or threatened for life, that he has tried to change and get elected twice and now the 3rd time. It's time now to bring a vote of non-confidence against him and shunt him out and throw him out. नमस्कार, मैं रविश कुमार। यूएपीए का खेल शुरू हो गया। इसके दुरुपयोग पर अदालतों की तमाम टिप्पणियां भरी पड़ी हैं और हम इस वीडियो में बताएंगे भी। लेकिन इसके बाद भी अरुंधति रॉय और डॉक्टर शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति देकर सरकार फिर से अपने पुराने खेल में उतर आई है। अरुंधति रॉय पर यूएपीए की धारा 13 लगाई गई है, जिसका संबंध गैर कानूनी गतिविधियों से है। उन पर आतंकवाद की धारा नहीं लगाई गई है। पत्रकार सौरभ दास का कहना है कि अरुंधति रॉय पर जिस धारा के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है, उसके तहत जमानत की शर्तें उतनी कठोर नहीं होती जितनी यूएपीए की आतंकवाद की धाराओं में होती हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यूएपीए का दुरुपयोग किन धाराओं में ज्यादा हुआ है और अब यह कानून किस लिए जाना जाता है। धाराओं और प्रावधानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी छवि, कठोर प्रक्रिया और दुरुपयोग। 14 साल पुराने मामले में एक लेखिका के खिलाफ इस कानून की धाराओं का इस्तेमाल करना बता रहा है कि अरुंधति रॉय के प्रति स्टेट और स्टेट का राग अलापने वाली मीडिया की सोच न बदली है न बदलेगी। तब भी जब केरला के मीडिया वन चैनल से लेकर पत्रकार सिद्दीक कप्पन के मामले में सुप्रीम कोर्ट यूएपीए के दुरुपयोग पर कितना कुछ कह चुका है, इसके बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। दिल्ली पुलिस ने कारवा पत्रिका के 3 पत्रकारों को 4 साल के बाद यह जानकारी दी कि 2020 से उनके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है। कई बार लगता है कि अदालतों की यह टिप्पणियां सरकार के लिए नहीं होती, वरना कुछ तो असर होता। सैकड़ों चैनलों और अखबारों में लिखे जा रहे एक एक शब्दों को गुलाम बनाने के बाद भी उससे कुछ आजाद शब्दों से, चेहरों से इतनी नफरत है कि उनका लिखा जाना, उनका बोला जाना उसे आतंकवाद नजर आता है। अरुंधति रॉय और प्रोफेसर हुसैन, यह दोनों के मामले दिल्ली पुलिस के कार्य क्षेत्र में आते हैं और दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है, वही मंत्रालय जिसका जिम्मा एक बार फिर से अमित शाह के पास है। चुनाव के ठीक पहले ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने अमित शाह पर अतुल देव की विस्तृत रिपोर्ट छापी। इस लेख में अरुंधति रॉय का एक बयान है जहां उन्होंने कहा कि मोदी में एक आकर्षण है और उनके बारे में सबसे खतरनाक बात शायद यही है।
मगर अमित शाह एक तार वाला साज हैं जिससे सिर्फ डर का सुर निकलता है। अंग्रेजी का उनका वाक्य इस तरह से है, अमित शाह इज ए सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, द ओनली नोट ही कैन स्ट्राइक इज फियर। लगता है फिर से उसी डर का एहसास कराने का खेल शुरू होने जा रहा है। अरुंधति रॉय के मामले में 2010 में दायर एफआईआर के आधार पर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है। सुशील पंडिता नाम के कश्मीरी सामाजिक कार्यकर्ता ने 28 अक्टूबर 2020 को एक एफआईआर कराई थी। इसमें उन्होंने 21 अक्टूबर 2010 के एक कार्यक्रम का जिक्र किया जिसमें अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के दिए गए बयानों का हवाला है। एफआईआर में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में ऐसे मुद्दों पर बात की गई जो कश्मीर के भारत से अलग हो जाने से जुड़े थे। इस एफआईआर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SAR गिलानी का नाम भी शामिल था। दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि सुशील पंडित की एफआईआर के अनुसार इस कार्यक्रम में अरुंधति रॉय ने यह कहा कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, भारत की सेना ने इस पर जबरन कब्जा जमाया हुआ है और भारत से जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इस मामले में पिछले साल अक्टूबर में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने IPC की 3 धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया। 14 सालों में कश्मीर का स्वरूप कितना बदल गया है। जिस अनुच्छेद 370 के बारे में कहा जाता रहा कि वह कश्मीर को भारत से अलग करता है, उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वह जम्मू कश्मीर को किसी भी प्रकार की आंतरिक संप्रभुता नहीं दे रहा था। लेकिन आपको इतना बड़ा झूठ बुलवाया गया, बताया गया और यह अपराध नहीं। 10 साल से कश्मीर में विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ। सरकार के पास कश्मीर के बारे में कहने और करने के लिए कितना कुछ है, मगर 14 साल पुराने बयान को एक बार फिर से घुमाया जा रहा है ताकि कश्मीर से जुड़े बाकी सभी सवालों से ध्यान हट जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल को जनता का काम छोड़कर, पानी का संकट छोड़कर, बिजली का संकट छोड़कर अरुंधति रॉय की लिखी किताबों को अब पढ़ ही लेना चाहिए। उनमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा। अगर शब्द ना मिले, वाक्य ना मिले तो क्या पता कॉमा मिल जाए, फुल स्टॉप मिल जाए, सेमीकोलन मिल जाए, जिसे देश के लिए खतरा बताकर अरुंधति रॉय पर UAPA का मुकदमा चलाया जा सके। अगर जांच एजेंसियों के अफसरों की अंतरात्माएं इन दिनों उदास रहने लगी हैं तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जैसी किताब पढ़नी चाहिए। माई सिडिशियस हार्ट में तो पक्का कुछ न कुछ मिल जाएगा जिसे लेकर अरुंधति रॉय पर UAPA के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। अफसर लंच टाइम में इस पर विचार कर सकते हैं कि किसी का दिल देशद्रोही कैसे हो सकता है। दिल से तो गुलाब का फूल खिलता है। इस बात को लेकर अफसर लंच के बाद अपनी फाइलें मोटी कर सकते हैं कि दिलों का सिडिशियस होना संप्रभुता के लिए खतरा है। इसलिए देशद्रोह की धारा के तहत लेखिका के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और कुछ नहीं तो अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट इनजस्टिस में तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जिस देश में 5-5 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिलती हो, इतने साल जेल में रखा जाता हो और जमानत मिलते समय कहा जाता हो पर्याप्त सबूत नहीं है, उस देश में लेखिका अन्याय को अनंत कैसे कह सकती है। 10 साल बाद न्याय तो मिलता ही है, यह भी तो उन पर UAPA चलाने का आधार हो सकता है। और अगर सरकार ने तय ही कर लिया है कि वह कविताओं और कहानियों में आतंकवाद ढूंढ कर रहेगी, उनके लेखकों को जेल में बंद करेगी, तो फिर उस सरकार के लिए प्रार्थना की जा सकती है। आम जनता को समझना चाहिए कि ऐसे लिखने वाले नहीं होंगे तो फिर आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बनाने का सपना नहीं देख सकते। अरुंधति रॉय जैसे लोगों के बिना समाज बौद्धिक गुलामी में जीने लग जाता है। अरुंधति रॉय ने जो लिखा है, जो बोला है, वह सब उनके लिखने और बोलने के दिन से इस धरती पर मौजूद है और उसकी वजह से इस धरती पर कहीं भी अशांति, धार्मिक शत्रुता नहीं फैली है, ना किसी मुल्क की संप्रभुता को खतरा पहुंचा है। समाज में जहर फैलता है उन सैकड़ों लोगों से जो एक अपनी हाउसिंग सोसाइटी में एक अकेली मुस्लिम महिला के रहने के खिलाफ प्रदर्शन करने लग जाते हैं। वडोदरा कॉरपोरेशन ने 450 से अधिक लोगों को घर दिया।
उसमें एक मुस्लिम महिला को घर मिला तो हिंदू लोग खतरे में आ गए, प्रदर्शन करने लग गए। नफरत की राजनीति ने राज्य और जनता का ये हाल कर दिया है। कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, तो एक लेखिका को निशाना बनाया जा रहा है। 14 साल पुराना मामला है। का उदाहरण हम यहां देना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला के कुछ बयानों का हवाला देते हुए 2021 में रजत शर्मा और नेह श्रीवास्तव ने एक PIL दायर की। कहा कि उनके खिलाफ IPC की धारा 124A के तहत मुकदमा हो। 124A यानी सेडिशन, राजद्रोह का केस। फारूक अब्दुल्ला ने पब्लिक में दिए अपने एक बयान में कहा कि अनुच्छेद 370 को चीन की मदद से बहाल करना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे महत्व नहीं दिया। जबकि अब्दुल्ला ने वायर से भी अपने इंटरव्यू में इस तरह की बातें कही। करण थापा से उन्होंने कहा कि आज के दिन कश्मीरी लोग ना अपने आप को भारतीय महसूस करते हैं, ना ही भारतीय होना चाहते हैं। इस तरह के बर्ताव से तो वे चीन द्वारा शासित किया जाना बेहतर समझेंगे। उस इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला कश्मीरियों के दर्द को बयान करते हैं, बताते हैं कि कैसे 370 हटाने के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना तैनात है। कश्मीर अपना भविष्य नहीं देख पा रहा। महीनों से इंटरनेट बंद है या बहुत धीमा है। ऐसे में कश्मीर के बच्चे बाकी भारत के बच्चों से कैसे स्पर्धा करेंगे? थापर पूछते हैं कि क्या कश्मीर भारत से नफरत करता है? उत्तर में अब्दुल्ला भावुक होकर कहते हैं, इन लोगों ने हमें उस लेवल पर ला दिया है। कहते हैं, अगर मैं भारत की कहीं भी बात करता हूं, कोई सुनना नहीं चाहता। अलग अलग मंचों पर फारूक अब्दुल्ला ने जिन संदर्भों में ये बातें कही, कोर्ट ने उसे गंभीरता से नहीं माना। जबकि रजत शर्मा ने श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में राजद्रोह के केस की मांग के अलावा उनकी सांसदी छीन लेने की अपील की थी। उस समय फारूक अब्दुल्ला सांसद थे, मगर याचिका को खारिज करते हुए पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा, सरकार से अलग मत रखना राजद्रोह नहीं है, डिसेंट सेडिशन नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा, याचिकाकर्ताओं ने अपने इस आरोप को सब्सटेंशिएट नहीं किया कि फारूक अब्दुल्ला ने भारत की निंदा करने के लिए चीन और पाकिस्तान का सहारा लिया। कोर्ट ने याचिका खारिज करने के अलावा याचिकाकर्ताओं पर 50,000 का जुर्माना लगाया था। कश्मीर जैसे मुद्दे पर कोर्ट की यह नजीर है कि आप अलग राय रख सकते हैं। 14 सालों में कश्मीर का स्वरूप ही कितना बदला। जिस अनुच्छेद 370 के बारे में कहा जाता रहा, वह कश्मीर को भारत से अलग करता है, यही बताया गया। लेकिन उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह जम्मू कश्मीर को किसी प्रकार की आंतरिक संप्रभुता नहीं दे रहा था। मगर आपसे झूठ कहा गया और आपके भीतर धारा 370 को लेकर नफरत भड़काई गई। 10 साल से कश्मीर में विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ। सरकार के पास कश्मीर के बारे में बात करने के लिए, काम करने के लिए कितना कुछ है, मगर 14 साल पुराने बयान को एक बार फिर से घुमाया जा रहा है ताकि कश्मीर से जुड़े बाकी सभी सवालों से ध्यान हटे और जनता के बीच ध्रुवीकरण हो। सभी को पता है कि UAPA और मनी लॉन्ड्रिंग की धारा लगा देने से जमानत मुश्किल होती है, कई साल तक जेल में रखना आसान होता है। अरुंधति रॉय मोदी सरकार और धार्मिक और नफरती राजनीति की घोर आलोचक रही हैं। क्या उन्हें इसी बात की सजा दी जा रही है? क्या मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अरुंधति रॉय को उदाहरण बनाने की कोशिश की जा रही है? हम जानते हैं कि ऐसे मामलों में क्या होता है, आरोप स्थापित नहीं होते, जांच शुरू नहीं होती, ट्रायल शुरू नहीं होती, कई साल जेल में रहने के बाद जमानत मिलती है। यही सब चल रहा है। कोर्ट का भी कितना समय बर्बाद हो रहा है। अरुंधति रॉय ने अपनी एक और किताब आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन के इंट्रोडक्शन में यह लिखा है, फांसीवाद का बुनियादी ढांचा हमें घूर रहा है। यह एक महामारी की तरह तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। इसके बाद भी हम इसे फांसीवाद कहने से हिचकिचाते हैं। फरवरी 2022 में अरुंधति रॉय ने करण थापर से कहा था, भारत में फांसीवाद का खतरा है, मगर मुझे इस देश के लोगों पर बहुत भरोसा है कि वो इस कोशिश को रोक देंगे। उसी इंटरव्यू में उन्होंने फांसीवाद के 10 चिन्हों की लिस्ट पढ़कर सुना डाली थी। 2024 के चुनाव में विपक्ष के कई नेता तानाशाह और डिक्टेटर का इस्तेमाल करने लगे। लंबे समय तक उनकी जुबान पर तानाशाह नहीं आया,
लेकिन जब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, जेल जाने के डर से नेता पार्टियां बदलने लगे और पार्टी का फंड रोका जाने लगा, तब तानाशाही के अलावा विपक्ष के पास दूसरा कोई शब्द नहीं बचा था जो इस प्रक्रिया को साफ साफ व्यक्त कर सके। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा था कि उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, जबकि यूएपीए का मामला बेहद कठोर होता है। जांच एजेंसी को गिरफ्तार करते समय उसका कारण जरूर बताना चाहिए और पैमाना ऊंचा होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई बार कहा कि यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यह सब आपके सामने है, मगर इसके बाद भी अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई। नताशा नरवाल, दिवांगना कालिता, आसिफ इकबाल तन्हा के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था यूएपीए की धारा लगाने में सरकार को सतर्क रहना चाहिए, उसके पास ठोस आधार होने चाहिए। राज्य इन प्रावधानों की व्यापक व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन लगता है अरुंधति रॉय के मामले में व्याख्या की जरूरत ही नहीं। इतना ही काफी है कि वे अरुंधति रॉय हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर